Next poem, Amanda. In the last part of lesson 4, we can see a poem named Amanda, written by Robin Klein. Page number 61. Lesson 4, from the diary of Annie Frank. In the last part of the lesson, we can see a poem, Amanda, written by Robin Klein. आजकल के बच्चे ज़्यादा आदेश पसंद नहीं करते. दे वांट फ्रीडम. लेकिन उसका फ्रीडम को रुकावट बनाने वाले बहुत सारे लोग देख सकते हैं. स्कूल में है तो टीचर, घर पे है तो पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स, और कई जगह में कई लोग, ऑफिस में तो ऑफिसर्स, सब लोगों को परेशान करता है. दैट विल curtail their freedom. So this poem is about a girl and she wants freedom, but her parents, particularly the poem does not say about who is saying all these things, but we can see that the mother of that girl is disturbing her or asking her or demanding her to do something that she does not like to do. In the introduction part, it is written, every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. You too may feel that your freedom is curtailed. When we read the lines, we can understand, or we can imagine, or we have to conclude that a mother demands the girl something. That we can understand through the lines. So let us start the poem. Don't bite your nails, Amanda. We also have the same habit of biting nails. ट्रिमिंग करके आने के लिए क्या है तो करेगा नहीं. बाकी जो फ्री टाइम या क्लास टाइम जो भी अन्य काम होता है तो उसी टाइम उसको खाते रहता है. सो डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा. वन कमांड इज दैट वी कैन सी. लड़कियों को ज़्यादा कमांड देने वाले और ज़्यादा समझाने वाले, ज़्यादा बताने वाली मम्मी होती है. तो मम्मी कहती है, वी कैन कंक्लूड दिस लाइक दिस इन ए बिटर वे. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. तो कुछ लोगों की आदत है, even in classrooms, students are not sitting properly. वो कंधे झुका के बैठता है. And most of the time, they move their shoulders round and round. It is our own habit that we do not sit erect. So the mother wants her, don't hunch your shoulders, Amanda. Amanda, समझ में आ गया होगा, उस बच्ची का नाम है अमांडा. So don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Slouching means sit in a lazy way, not in a proper way. क्लास में बैठते समय हम सीधे बैठते ही नहीं हैं. कभी डेस्क में पैर रख के या टेबल में सिर रख के
आराम से बैठने का और लेट के पढ़ने की आदत है हमें, वैसे द रीज़न इज दैट वी डोंट नो द करेक्ट posture while learning a lesson in the classroom. In the classroom, when we learn something, we have to sit straight way, keeping our back in a straight way. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. मम्मी कहती है सीधे बैठने सीखो वरना तो खूब बड़ी हो जाएगी. The stop that slouching, आलस्य में बैठना छोड़ दो. तो stop that slouching and sit up straight, Amanda. And the next lines are in brackets. जब हमें इसी तरीका का कोई बस बात आते है तो हम सोचने लग जाते हैं. That imagination is mentioned in these lines. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me. एक ऐसा languid emerald sea है. Languid means peaceful, emerald means in green color. जो गहरा पानी है तो बाहर से देखा जाए तो हरा जैसा दिखाई देता है. That is called emerald. Emerald means green in color. वैसे वर्ड में नहीं, एमराल्ड हीरा में आता है. एक हीरा का नाम है एमराल्ड, नॉर्मली इन ग्रीन कलर. सो देयर इज ए लैंग्विड एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी. ऐसा एक समुद्र हो और उसमें केवल एक ही इंसान, ओनली इनहैबिटेंट, एक ही इनहैबिटेंट रहने वाले, इस मी, वो मैं हूँ. हु, ये मरमेड. मरमेड मीन्स जलपरी, देखा होगा. सिर इंसान के और बाकी भाग मछली के, उसी को कहते क्या है, मरमेड. ये मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. ड्रिफ्टिंग मीन्स मूविंग, ब्लिसफुली मीन्स विथ ग्रेट जॉय. बड़े मज़े से घूमने वाले, मज़ा लेने वाले अकेला प्राणी. देयर इज नोबडी एल्स टू डिस्टर्ब द मरमेड. सो इस बच्ची कल्पना करते, अगर मैं उसका जलपरी होता तो कितना अच्छा था, शांति भरी जीवन है, तो किसी का डांट नहीं पड़ेगा. बिकॉज द मरमेड इज द ओनली इनहैबिटेंट इन द सी. विच सी? एमराल्ड सी, लैंग्विड सी. उस समुद्र का अगर वो जलपरी होता तो कितनी अच्छी बात. मैं आराम से ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली करके जीवन बिता देता. लेकिन यहाँ घर पे देखो, आजकल के बच्चे वैसे तो कोई आज्ञा पसंद नहीं करता है. दे वांट टू डू आज दे लाइक. इसलिए किसी का भी इस तरह का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल पसंद नहीं करता. सो दिस इज द इमेजिनेशन पार्ट. In the first we have seen that the order given by her mother, don't bite your nail, don't hunch your shoulders, don't slouching, sit straight, etc., etc. She continues, did you finish your homework, Amanda? The same question will come from our house also, from teachers also. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? Did you clean your room, Amanda? Tidy means clean. ये और आपत्ति. मम्मी लोग समझती है कि लड़कियों को साफ़ सफाई करने आना चाहिए, बर्तन धोने आना चाहिए, कपड़े धोने आना चाहिए, खाना बनाने आना चाहिए. तो उसका एक पार्ट है, डिड यू क्लीन योर रूम, अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, अमांडा. याद है मुझे.
क्या, शायद मैंने बोला था तुम्हें शूज़ भी साफ करना। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, शूज़ साफ करने का काम तो मम्मी का है, मम्मी करो चाहिए तो इस लड़की की उम्र थोड़ा आइडिया लगाना है तो बताए नहीं, तो अभी तो बस जो बच्ची शूज़ स्वयं साफ करने और कमरा स्वयं साफ करने लायक लड़की बनी, दैट मीन्स शी इज़ ग्रोइंग अप। तो विद द ग्रोथ शी हैज़ टू लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स एंड शी हैज़ टू डू ए लॉट ऑफ थिंग्स। हम लोग कुछ भी नहीं करते, स्कूल जाना, खाना खाना, लेटना, यही हमारा काम है। लेकिन उसी के साथ साथ दे हैव टू लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स, दैट इज़ वाई वन आफ्टर अनदर द क्वेश्चन comes like this. Did you tidy your room? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. फिर हो गया परेशानी। होमवर्क करने के लिए तो उसको पता है स्कूल में होमवर्क करना है, कर भी लेते, फिर भी टोक देते, कर ले क्या। और शूज़ क्लीन करके स्कूल में नहीं गए तो स्कूल के टीचर्स पकड़ लेते, ये क्या है, जूते साफ नहीं करता है, हर तरह की परेशानी। फिर उसकी कल्पना, आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ बिन जिसके माता पिता मर गए। रोमिंग द स्ट्रीट, अगर मैं स्ट्रीट में घूमने वाली एक अनाथ होती। आई पैटेंट सॉफ्ट डस्ट विथ माई हश्ड बेयर फीट, तो मैं मेरे हश्ड बेयर फीट से, नंगे पैर से, हश्ड मीन्स काम, धीरे धीरे और डस्ट यानी धूल के ऊपर क्या कर देता, आई पैटर्न, में कुछ आकार बना देता, कुछ रूप बनाता, धीरे धीरे धीरे। तो अनाथ बच्चों को ज़्यादा कोई कुछ पूछेगा नहीं, तो यहाँ क्यों कर रहे, कैसे कर रहे, तो ये पता पड़ गया कि अनाथ है तो कोई कुछ कहते नहीं है, तो वहाँ भी उनको फ्रीडम मिलता है, दे कैन गो लाइक दैट, दे कैन डू समथिंग। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। वो दो बात बताती है, साइलेंस एंड फ्रीडम। वो साइलेंस को प्रेशियस समझती है और फ्रीडम को स्वीट समझती है। गोल्डन मीन्स वैल्यूएबल, प्रेशियस। वहाँ का जो साइलेंस है उसको तो अच्छा लगता है, वो आज़ादी वो कहती है बिल्कुल मधुर है। और इस तरह से वो कल्पना करती है, अगर काश मैं एक ऑर्फन होता, मैं इस तरह से, जैसे समुद्र के किनारे लोग मतलब जाते समय रेत में, गीले रेत में कुछ कुछ लिखता है, बनाता है, ऐसा देखा होगा। जो समुद्र देखा हो उसका किनारे गया हो, जो नहीं है आगे जाके बस देख के आ जाना, मौका मिल जाए तो। क्योंकि राजस्थान में रहने वालों को समुद्र देखना बहुत दूर की बात है। तो मेक ए ट्रिप सो यू कैन गेट द आइडिया व्हाट इज सी शोर, व्हाट इज बीच, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द सी, हाउ द waves come from one by another. So I am an orphan roaming the street. I patted soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. वो कहती है, अगर मैं ऑर्फन होता, मैं आराम से सॉफ्ट डस्ट के ऊपर मैं अपना तरीका से आकृति बना देता, क्योंकि मेरे लिए तो वो साइलेंस, वो चुप्पी, वो शांत स्थिति तो वैल्यूएबल है और फ्रीडम मधुर है। मैं इसे चाहता हूँ। देन कंटिन्यूस मदर, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, चॉकलेट मत खाना। आजकल के बच्चों से चॉकलेट खाने के लिए मना किया तो कोई मान जाएगा, लेकिन मम्मी लोग कहते, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर यूर एक्नी अमांडा। चॉकलेट ज़्यादा खाने से पिंपल्स ज़्यादा हो जाएगा। एक्नी मीन्स पिंपल,
पिंपल्स तो जानते होंगे ना सब, बस वही है एक्नी। इसलिए मम्मी मना करती है। सो टोकने वाली बातों पर, मना करने वाली बातों पर कुछ तो फ़ायदे वाली है, कुछ नुकसान वाली है, लेकिन बच्चे ये दोनों नहीं चाहते। कोई अच्छा हो बुरा हो, दे डोंट वांट टू गेट ए स्कोल्डिंग, दे डोंट वांट टू गेट ए पर्टिकुलर ऑर्डर। तो यह मम्मी कहती ये तो अच्छी बात है, क्योंकि चॉकलेट मत खाना, क्योंकि एक्नी ज़्यादा हो जाए। लेकिन चॉकलेट खाने के लिए मना करना, उसके लिए तो बहुत मुसीबत की बात है। सो रिमेंबर योर एक्नी अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग एट यू अमांडा। मैं तुमसे कुछ कहती हूँ, यहाँ ध्यान दे। कुछ लोग ऐसा होता है, हमसे कुछ कहे तो हमारा नज़र और कहीं लगा देते, इसका मतलब बोलने वाले की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। इवन इन द क्लासरूम वी कैन सी द सेम थिंग। टीचर कुछ पढ़ाता होता है और बच्चों का दिमाग इधर उधर होता है, तभी तो टीचर को डांटना पड़ता है। और डांटना बुरा, और खुद इधर उधर दे के बैठो तो वो सही, इधर दे के बैठो तो कुछ मत बोलो, डांटो ही मत, अपनी मर्जी से रहे। इट इज़ नॉट पॉसिबल। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ बातें हैं, वो हमको मानना पड़ता है। लेकिन यहाँ ये कहते हैं बस मैं तुमसे कुछ कहती हूँ, तुम इधर ध्यान दे रहे हो और उधर इधर ध्यान दिया कर। कोई कुछ सवाल करें तो उसका ऊपर ध्यान दिया करो, उस पर देखा करो। लेकिन हम इधर उधर देके जवाब, कोई तो इधर देके, कोई नीचे देके, कोई ऊपर देके, ऐसे कई लोगों को देखने को मिलता। तो मम्मी कहती है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्नी अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। मैं तुमसे कुछ कहते हैं तो बस मेरे ऊपर ध्यान दोगे या यूं ही खड़ी रहोगे। फिर वो सोचने लगता है, आई एम रामबलसल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टनली never let down my bright hair. I am Rampulsel. राम्बुलसल फेरी टेल का एक राजकुमारी है, कैरेक्टर है। उसकी कहानी के बारे में तो कई जगह में इसको मिला है। वाल्ट डिज्नी का एनिमेशन फिल्म में भी इसी कैरेक्टर को देखने को मिलता है। बात ऐसा है, एक राजकुमारी थी रामबलसल नाम, एक भूतनी ने उसको एक टावर के ऊपर कैद कर रखा था। लेकिन वो टावर में आने जाने का रास्ता तो एक ही था, उसका खिड़की। वो कैद करने वाला भूतनी भी अंदर प्रवेश करना है तो उसको खिड़की से आना है, वो भी ये रामबलसल का मदद चाहिए। रामबलसल के बारे में ऐसा बताते, ये प्रिंसेस की जो बाल है बहुत घने लंबे थे। ये खिड़की खोल के उस खिड़की से उसका बाल नीचे की तरफ डाल के देते हैं तो उसके सहारे ये भूतनी अंदर आती थी। अब भूतनी अंदर आना है तो उसको क्या करना है? भूतनी नहीं कह सकता है कि बस हम कहते हैं ना राक्षसनी, तो इस तरह का एक विच कहते हैं उसको, WITCH। भूतनी भूतनी हम तो लोकल भाषा में कहते हैं, जादूगरनी मीनिंग है। उस टावर के अंदर एक कमरा मान लो, उस कमरे के अंदर उसको ले जाके कैद किया है। उस कमरे का कोई दरवाज़ा नहीं, एक ही खिड़की है, उसमें से आने जाने का, उसको तो आने का मौका तो मिलेगा ही नहीं। लेकिन भूतनी लोग जादूगरनी हो तो आ सकता है, लेकिन उस जादूगरनी को भी अंदर आना है तो क्या करना पड़ता है? उस खिड़की से आना पड़ता है। उस खिड़की से आना है तो किसी के सहारे आना पड़ता है। वो इसकी बाल थी, इतने लंबी घने बाल, वो खिड़की से बाहर डालते तो अंदर आ जाते। शुरू में तो डाल दिया, परेशान हो गया। अब तो वो भी सोचा अब मैं बाल तो डालूंगी नहीं, बाल नहीं डाले तो मुझे कोई परेशान करेगा। वो ये तो चुड़ैल भी मतलब
जादूगरनी भी अंदर नहीं आ सकता। तो मेरा उधर का जो लाइफ है बिल्कुल ट्रैंक्विल होगा। ट्रैंक्विल मीन्स पीसफुल, रेयर मीन्स इधर का मतलब मज़ेदार। तो अगर मैं रामबलसल होता, आई हैव नॉट ए केयर, यहाँ केयर का मतलब है वरी, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि लाइफ इन द टावर इज़ ट्रैंक्विल, क्योंकि वहाँ का रहना बिल्कुल पीसफुल है एंड रेयर, मज़ेदार भी है। आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब वो आ जाए तो मैं कदे ही मेरे बाल खिड़की से बाहर नहीं डालूँ, तो आएगी कैसे, तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस तरह से वो सोचने लगा। टोटली शी एक्सपेक्ट्स फ्रीडम फ्रॉम एवरीवेयर, हर जगह से वो फ्रीडम ही चाहते। इवन ऑन द टॉप ऑफ द टावर शी वांट्स फ्रीडम। डिस्टर्ब करने वाला एक ही जादूगरनी है, और उससे भी उसको बच कर रहना है। रामबलसल के बारे में अलग अलग जगह में अलग अलग कहानियाँ लिखी है, कोई पर्टिकुलर नहीं, इट्स नॉट ए रियल नेम एंड रियल स्टोरी, इट इज़ ए फेरी टेल। तो उसमें बताया, कई लोग कई तरीक़े से बताते हैं। और यहाँ मैं सब परीक्षा में तो कोई पूछेंगे नहीं रामबलसल की कहानी बताओ, फिर भी एक आइडिया आई हैव गिवन यू दैट यू वांट्स ए प्रिंसेस। फेरी कहानी का जो प्रिंसेस है उसको एक टावर के ऊपर कैद कर रखा था इस कमरे में। वो कमरे का कोई दरवाज़ा नहीं है और उसका एक ही खिड़की है, और एक जादूगरनी ने उसको उसके अंदर कैद किया है। वो उससे मिलने आते थे कभी कभार, वो भी उस खिड़की से आना था। खिड़की से आना है तो कोई सहारा चाहिए, वो सहारा इसकी लंबी बाल थी, उसमें पकड़ पकड़ के वो आती थी। लेकिन अब तो वो आ जाए तो मैं मेरे बाल डालूँगी नहीं, क्योंकि मुझे कंप्लीट आज़ादी चाहिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए मेरे जीवन को। तो इस तरह से वो सोचने लगी। फिर मम्मी शुरू की, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, तुम्हारे बेकार मूड को सही करो। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, सल्किंग यानी सैड मूड, सैड मूड में रखना ही बंद करो, उदास रहना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, वैसे तो मूडी तो है, इसका मतलब थोड़ी है 24 आवर्स मूडी रहे, थोड़ा बहुत सुधर जाओ। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा, कोई देखा तो क्या कहोगे, क्या बोलोगे, क्या सोचोगे, मैंने तुम्हें परेशान किया, मैंने तुम्हें नैगिंग किया, मैंने तुम्हें ट्रबल किया, मैंने तुम्हें हरास किया। लोग ऐसा सोचोगे ना, इसलिए तुम्हारा मूड सही बना के बैठा कर, ताकि देखो बोलने वाले को भी फीलिंग होता कि लोग आते समय ये आउट ऑफ मूड में बैठा है तो क्या सोचेगा, तो सोचेगा तो मैंने उसके साथ कुछ किया है। और अपना क्रेडिट भी चाहिए, बच्ची सुधरना भी चाहिए, बच्ची को परेशान भी करनी है। और इस तरह से बोलने वाली एक माँ यहाँ देखने को मिलता है। अपने घरों में भी इस तरह की बातें छोटी छोटी आती रहती होगी। एनीवे, रॉबिन क्लाइन स्पष्ट रूप से बताते कि कुछ एडवाइस बच्चियों को पर्टिकुलरली समय समय पर देना उचित है। उसमें कुछ तो बुरा लगेगा, लेकिन कुछ तो अच्छा होता है। चाहे बुरा हो अच्छा हो, मम्मी कहती है, और इसलिए उसको मान के चलना उचित है। और आप लोग भी अपना अपना घर पे होते समय, घर पे रहते समय, स्कूल में रहते समय, बाहर जाते समय इसी बात को याद रखना। जो हमें नहीं करना है तो नहीं करना, जो करना है टाइम टू टाइम करना। जो भी कुछ एडवाइस दें उसको बुरा नहीं मानना, क्योंकि उसमें कुछ बात होती है, इसलिए एडवाइस देते हैं। इसका पालन करते हुए और ग्रोइंग एज में हमें पल पल पर टोकना ज़रूरी होता है। जो अच्छा बुरा देके, जो अच्छा है उसको और इनकरेज करना होता है, बुरा है तो उसको टोकना चाहिए। और इसलिए कोई भी कुछ कहें, टीचर कहें, मम्मी कहें, पापा कहें, भाई बहन कहें, बुरा ना माने, उसके बारे में सोचें, क्योंकि उस उम्र में अपन को इतना सोचने का तो दिमाग ही नहीं होगा। बट वी आर ग्रोइंग टाइम में ऐसी ऐसी बात आते समय उसको बुरा ना समझते हुए उसका अच्छाई ढूंढने का
कोशिश करें, दैट विल बी ए बेटर वे लर्न द लेसन. रीड द पोएम, try to understand the possible questions. और अगर इस क्वेश्चन में इसमें से ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोई अमांडा की एज बताने, तो एज इसका अंदर बता ही नहीं रखा है. वैसे तो छोटी है ही सही. होमवर्क करने का समय की जो बात है, बड़ी क्लास में आने के बाद ज़्यादा होमवर्क करने के लिए कोई कहते नहीं है. छोटे बच्चों को ज़्यादा जो फोर्स देना पड़ता है. इस तरह से ग्रोइंग एज की जो लड़की है, स्कूल में पढ़ती है, ये भी समझते हैं. तो आइडिया लगाएं उसके उम्र क्या हो सकता है. तो इवन आई कैन नॉट से द एग्जैक्ट एज, बस ग्रोइंग एज है लड़की का, वो स्कूल में पढ़ती है, तो उसी के हिसाब से एज के हिसाब किताब लगाए. ओके.